Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So since yesterday, it is very exciting to see there is a lot of debate going on. SSC or bank? Should we go for SSC? Should we go for bank? And mere news of appointment of pay commission is leading to this discussion. In my view, such discussions are not useful for unemployed youth. Pay commission can be a good news in coming 2 to 3 years if it is implemented for persons those are already working with central government. Similarly, this can also be good news for other sector employees like banking, insurance, public sector, state governments and anybody else. Because if central government wages increases, that makes a case for salary hike in other sectors also. Although in other sectors the salary hike happens as per their own systems. Like banking, there is a bipartite settlement. In insurance also there is a settlement system. RBI also there is a settlement system. So if in one area wages rise, it does not mean the others will not get the wage rise. Okay? So this discussion, bank versus SSC versus some other sector, has no meaning. In my eyes, the meaningful thing is if you are unemployed, where is the job? Are you getting the job? What is the level of competition? How many are the vacancies? Your concentration should be on that. If wages rises and there are no vacancies in that sector, and even if vacancies comes and high cutoff comes, like this time happened with the SSC candidates, they worked very hard. But they all were surprised to see the high cutoff. Even if there were 16,000 vacancies, most of the vacancies were in postal department where most of the people after selection not joining. So you have to look at the finer detail of vacancies also. There may be vacancies, but are they for the jobs which you are looking for? The job of inspector or job of higher ranks in government? Or they are the jobs that may not be as per your liking. So merely seeing a pay commission, being very cheerful, now the SSC is better or bank is better or insurance is better or something else is better, this is a meaningless discussion for a unemployed youth. The first thing is getting employment. And employment will only be forthcoming if that sector or government or state government or any other public sector gives the vacancies and the competition is reasonable and you are able to crack it. As far as some individuals are concerned, it is always the person will go for a better option. Say you crack 3, 4, 5 examination. Will you opt for an organization where salaries are less? No, definitely you will opt for an organization where salary is higher. So this discussion is meaningless for a person who does not have more than one offers. So if you have only one offer, definitely you will join that. But if you have more than one offer, definitely you will choose as per your liking. So I think this is not the stage where we should spend our time on discussion which job is better or which job is not better, because only a commission is appointed. They will give their opinion, then it will be go under discussion. It may be implemented after 1 year, 2 year, 3 year, because there is no time frame in government implementations if we go by the past history. And by the time this is implemented, the wage revision in other sector may also be due. So I will advise you, don't fall into wasters of time on such discussions. Merely focus on study. Wherever exams are lined up, kindly gear up for those exams. Try to get employed first.
remove the tag of unemployed as early as possible. This is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। कल पे कमीशन का न्यूज़ आया और उसके आते ही एक अजीब सी बहस शुरू हो गई है। एसएससी अच्छा है, बैंक अच्छा है, एसएससी में जाना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस बहस का आज की तिथि के अंदर कोई मायना नहीं है, क्योंकि मान लीजिए पे कमीशन आया, पे कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, फिर इस रिपोर्ट को सरकार अनुमोदित करेगी, उसके बाद लागू होगा। मान लीजिए तनख्वाह बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो भी न्यूज़ आ रही है ना वो तो एक हाइपोथेटिकल है। क्या प्रपोज करेगा पे कमीशन किसी को नहीं पता है। अब मान लीजिए पे कमीशन ने सैलरी इंक्रीज कर दी, अच्छी बात है, तो क्या इसका मतलब है बाकी जगह सैलरी नहीं इंक्रीज होगी? बैंकिंग में सेटलमेंट्स होंगे, इंश्योरेंस में सेटलमेंट्स होंगे, पब्लिक सेक्टर उसको फॉलो करेंगे मॉडल को, स्टेट गवर्नमेंट उस मॉडल को फॉलो करेंगी। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में वेजेस हाइक होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइक दूसरे सेक्टर्स में भी होगा, क्योंकि वो एक मॉडल बनता है कि वहाँ इतनी तनख्वाह हो गई तो हमारी भी इतनी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह तनख्वाह बढ़ गई, दूसरी जगह के लोग जो है तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। एक ने लिखा सर हम तो गरीब हो जाएंगे। अरे किसी के तनख्वाह बढ़ने से आपकी कैसे तनख्वाह कम हो जाएगी? आपकी भी तो बढ़ेगी। आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, इसका कोई मायना नहीं है। मायना किस चीज का है? कहाँ पर वैकेंसी है, आप अनएम्प्लॉयड है, आपको रोजगार कहाँ मिल रहा है। अगर रोजगार बैंकिंग में मिल रहा है आप बैंकिंग में जाएंगे, आपको रोजगार एसएससी में मिल रहा है आप एसएससी में जाएंगे, आपको रोजगार रेलवे में मिल रहा है आप रेलवे में जाएंगे, आपको रोजगार किसी और सेक्टर में मिल रहा है वहां जाएंगे। रोजगार मिलना पहली प्रायोरिटी है। ये डिस्कशन किसके लिए यूजफुल है? मान लो आपके पास 4 जॉब हाथ में है, अब 4 में कौन सी बेहतर है? नेचुरल है वही आप चुनाव करेंगे। उस समय अगर आप ये डिस्कशन करते हैं तो आपको यूजफुल होगा। मगर अगर आज की तारीख में आपके हाथ में एक भी जॉब नहीं है, आप केवल कैंडिडेट हैं, आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के कैंडिडेट है और दूसरा व्यक्ति दूसरे एग्जाम का कैंडिडेट है, आपस में बहस करके आपको क्या मिलेगा? अभी तो दोनों ही अनएम्प्लॉयड हो ना, दोनों ही सेम बोट में हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं सर एसएससी में चले जाएं, बिल्कुल जाइए, मगर एसएससी की जब आप वैकेंसीज देखते हो तो उसमें जिस तरह की वैकेंसी आपको चाहिए वो तो बहुत कम है। अधिकांश वैकेंसीज तो पोस्टल की है, जहाँ लोग सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन ही नहीं कर रहे। तो ऐसी वैकेंसी का आपको क्या फायदा है? पहली चीज सोचने वाली है। ऐसे ही मान लो आपने ड्रीम किया मुझे ये बनना है, आप एग्जाम में बैठते हो, हाई कट ऑफ आ जाता है, आपका सपना टूट जाता है, फिर आप दूसरे नए सिरे से तैयारी शुरू करते हो। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर की एक पे कमीशन आ गया, इसके अंदर हम ड्रम बजाने शुरू कर लें या कोई शौक मनाना शुरू कर दें, मेरे को नहीं लगता कोई इसमें अर्थ है। अर्थ ये है हमारे को जॉब कहाँ मिलेगी, अर्थ ये है कि मुझे नौकरी पे कौन रखेगा और उस नौकरी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो मुख्य विषय है यूथ के सामने वो है नौकरी मिल जाए। अनएम्प्लॉयमेंट नए नए आंकड़े आते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोग कई साल से कोशिश कर रहे हैं, उम्र निकल जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिले इसके ऊपर जोर दीजिए। ये जो है ना सेलिब्रेशन पे कमीशन का, ये उनके लिए अच्छा है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनको खुश होने के लिए तो सही है। पर जो कैंडिडेट है अभी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है कि कहाँ पर कितनी तनख्वाह हो जाएगी, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको कहाँ पर नौकरी मिलेगी। तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तरफ ध्यान दे के पढ़ाई करिए, ये मेरी सलाह है। और इस डिस्कशन से दूर रहिए कि एसएससी अच्छा है कि बैंक अच्छा है कि इंश्योरेंस अच्छा है कि फलाना अच्छा है। इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा अभी नहीं मिलना आपको। आपके लिए अच्छा वो है जो आपको रोज़गार दे दे, आपके लिए वो बढ़िया है जो आपके घर के अंदर मतलब रोज़मर्रा का खर्चा चलाने का जुगाड़ बना दे, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल विचार करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है उनके ऊपर शिद्दत के साथ तैयारी करिए, उसके अंदर पास होने की कोशिश करिए, नौकरी पाने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद फैसला करिए कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर बेकार है।
God bless you all.